Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. અત્યારે તમે ઘરેથી શૈક્ષણિક કાર્ય કરી રહ્યા છો. તમે ઘરેથી ભણવાનું તમારું ભણી રહ્યા છો. ઘરે બેસીને ભણવાનું કેવું લાગે છે તમને? મજા આવે છે? જ્યારે તમે શાળામાં આવતા હતા ત્યારે તમારું જે ડેલી રૂટીન હતું, અત્યારે તમે ઘરેથી ભણી રહ્યા છો તો તમને પણ મજા આવતી હશે. પણ તમારું ડેલી રૂટીન થોડું ચેન્જ થઈ ગયું હશે. જ્યારે શાળામાં આવતા હતા ત્યારે સવારે વહેલા ઉઠી નિયમિત હશો અને અત્યારે ઘરેથી ભણવાનું છે તો થોડું તમારો ટાઈમ ટેબલ બદલાઈ ગયું હશે. તો જુઓ, આપણે સવારે ઉઠીએ છીએ ત્યારથી રાત્રે સૂઈ જઈએ ત્યાં સુધી તમારો સૂવાનો, ઉઠવાનો, જમવાનો, રમવાનો, ભણવાનો આ બધા સમય નિશ્ચિત હોય છે. અને આ બધી ક્રિયાઓ જ્યારે તમે ઘરે કે સ્કૂલમાં કરો, તમે કેટલી વખત ઘડિયાળમાં જુઓ છો એ તમને ખબર છે? અત્યારે આપણું જીવન ઘડિયાળના કાંટાને આધારિત ચાલે છે. તમે દિવસમાં ઘડિયાળ કેટલી વાર જુઓ છો તમને પણ નહીં ખબર પડતી હોય. આપણા ધ્યાન બહાર જ હોય અને આપણે દિવસમાં કેટલી વાર ઘડિયાળમાં જોઈએ છીએ, કેટલા વાગ્યા છે, શું કરીએ છીએ, બરાબર? તો બાળકો, જ્યારે તમે ગયા વર્ષે શાળામાં નિયમિત આવતા હતા ત્યારે તમે શાળાનું ટાઈમ ટેબલ તમારી પાસે હશે. એ જોઈને આગળના દિવસે તમે પાઠ્યપુસ્તકો શાળાની તમારી બેગમાં ભરતા હશો. તો એ સમયપત્રક અહીંયા તમને હું બતાવું છું. જુઓ, આવું શાળાનું સમયપત્રક તમે તમારા વર્ગમાં લગાવેલું જોયું હશે. તમારા વર્ગમાં છે તે તમારું વર્ગખંડનું સમયપત્રક છે. તો તમે 10:30થી આપણી સ્કૂલ શરૂ થાય છે ત્યારથી લઈને 5 o'clock 5 વાગ્યા સુધી તમે જે કરો છો તે આખું સમયપત્રક તમારા વર્ગમાં લગાવેલું જ હોય છે. પહેલો પીરિયડ, બીજો પીરિયડ, રિસેસ ટાઈમ એ બધું જ આ સમયપત્રકને તમે અનુસરો છો. તો આજે આપણે રિવિઝન પોર્શનમાં આવું જ એક વર્ગખંડનું તમારું સમયપત્રક લઈને કામ કરવાના છીએ. તેમાં સમયપત્રકને લગતી જ પ્રવૃત્તિઓ છે. તો ચાલો જોઈએ આપણું સમયપત્રક. તો બાળકો, હવે આપણે જોઈશું રિવિઝન પોર્શનની એક્ટિવિટી 4, જેમાં છે જો તમારી શાળાની ઘડિયાળનો મિનિટ કાંટો અને કલાક કાંટો અદલ-બદલ થઈ જાય તો તમારું નવું સમયપત્રક કેવું બને? તો જુઓ, ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ટેબલ ઓફ મંડે. અહીંયા તમને સોમવારનું ટાઈમ ટેબલ આપેલું છે, જે તમારું રેગ્યુલર ટાઈમ ટેબલ છે. અને તેમાં કાંટાની સ્થિતિ બદલાઈ જાય એટલે કે અદલાબદલી થઈ જાય તો કયો સમય થઈ જાય તે આપણે નીચે જોઈએ. અહીં આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે તમારું સોમવારનું સમયપત્રક લખો. તો અહીં આપણે સોમવારનું તમારું જે રેગ્યુલર સમયપત્રક હોય, તમે શાળાએ જતા હોવ અને જે સમયપત્રક હોય એવું એક સમયપત્રક તમને દેખાશે. જુઓ, ટુ રીચ સ્કૂલ, તમે શાળાએ કેટલા વાગે પહોંચો છો? 10:45, 11:45. હવે આપણે કાંટા અદલાબદલી કરીએ. જ્યાં મિનિટ કાંટો છે ત્યાં કલાક કાંટો અને કલાક કાંટો છે ત્યાં મિનિટ કાંટો. હવે થશે 7 to 9. ધીસ ઇઝ 7 to 9. કયો સમય થશે આપણો? 7 to 9. ત્યારબાદ એસેમ્બલી ટાઈમ. આપણો એસેમ્બલી ટાઈમ 10:11 છે. એસેમ્બલી ટાઈમ 10:11. હવે આપણે કાંટા અદલાબદલી કરી દઈએ. જ્યાં મિનિટ કાંટો છે ત્યાં કલાક કાંટો, અવર હેન્ડ. હવે કાંટો બદલતા થશે 4 to 2. કાંટા અદલાબદલી થતાં બદલાઈ જશે. કયો સમય થશે? તે સમય થશે આપણો 4 to 2. એસેમ્બલી પછી આપણો ફર્સ્ટ પીરિયડ, પ્રથમ તાસ, જેનો સમય છે 11:30. હવે અહીં બંને કાંટાની અદલાબદલી થતાં સમય બદલાઈ જાય છે. કયો સમય થાય છે? જુઓ તો, ફર્સ્ટ પીરિયડ, એનો ટાઈમ છે 11:30, 11:30. હવે તેના કાંટા અદલાબદલી કરીશું અને જુઓ કયો ટાઈમ થાય છે.
તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો 3 to 6. 3 to 6. હા, ઇટ ઇઝ 3 to 6. ત્યારબાદ આપણો લંચ બ્રેક, રિસેસનો સમય, જેનો ટાઈમ છે 1:45. તે પણ કાંટાની અદલાબદલી થતાં આપણો સમય બદલાઈને કયો થશે? જુઓ તો, લંચ બ્રેક 1:45, 1:45. તેના કાંટા પણ હવે અદલા બદલી કરી દઈએ. અવર હેન્ડ છે ત્યાં મિનિટ હેન્ડ અને મિનિટ હેન્ડ છે ત્યાં અવર હેન્ડ. જુઓ હવે શું ટાઈમ થયો? ઇટ ઇઝ 9:09. 9:09. ત્યારબાદ 5th પીરિયડ. લંચ બ્રેક પછી આપણો 5th પીરિયડ સ્ટાર્ટ થવાનો સમય છે 2:30. તેમાં ઘડિયાળના કાંટા અદલા બદલી થઈ જાય. આપણો 5th પીરિયડ સ્ટાર્ટ થાય 2:30. હવે એના કાંટા આપણે અદલા બદલી કરી લઈએ. તો જુઓ, હવે આપણો સમય થઈ જશે 6:13. તો થશે 13:06. કેટલો સમય થશે? 13:06. ત્યારબાદ આપણો સ્કૂલ ઓવર, શાળા પૂરી થવાનો સમય. ઇટ ઇઝ 5 o'clock. ધીસ ઇઝ 5 o'clock. હવે તમે ઘડિયાળના કાંટા અદલા બદલી કરી જુઓ. તો હવે કેટલો ટાઈમ થયો? નાઉ ઇટ ઇઝ 25:12. ઇટ ઇઝ 25:12. તો બાળકો, તમને આ ઘડિયાળ સાથે રમવાની મજા આવી હશે, બરાબર ને? જુઓ, આ ઘડિયાળમાં તમે કાંટા બદલ્યા એમ કેવા સમય બદલાઈ જાય છે, અને એ સમય બદલાય એટલે આપણું ટાઈમ ટેબલ પણ કેવું બદલાઈ જાય છે. તો આવી અવનવી રીતે તમે કાંટા બદલીને રમો, તમને પણ મજા આવશે. પરંતુ હા, એના પહેલાં થોડું હોમવર્ક પણ આપવાનું છે. તો બાળકો, તમારે પણ હોમવર્કમાં આવી જ ઘડિયાળ બનાવવાની છે, બરાબર ને? તો સમજી લઈએ તમારે કેવી રીતે બનાવવાની છે. જુઓ, આ ઘડિયાળમાં તમે કોઈ પણ શેપમાં ઘડિયાળ બનાવી શકો છો. સ્ક્વેર બનાવો, સર્કલ બનાવો, ઓવલમાં પણ બનાવી શકો છો. પછી આવી રીતે આપણે 1 to 12 સુધીના નંબર લગાવી દેવાના છે. તમે લખીને પણ કરી શકો છો. પછી તમે તમારા ઘરમાં પણ ઘડિયાળ જોઈ હશે, જેમાં શોર્ટ હેન્ડ એટલે કે એક આવો શોર્ટ હેન્ડ હોય છે, જેને આપણે અવર હેન્ડ કહીએ છીએ, બરાબર? પછી બીજો છે તે છે લોંગ હેન્ડ, જેને આપણે મિનિટ હેન્ડ કહીએ છીએ. તો આવી રીતે 2 હેન્ડ બનાવવાના છે. અને તમે ઘડિયાળમાં જોયું હશે કે એક સેકન્ડ હેન્ડ પણ હોય છે, જે આ બંને કરતાં પણ લાંબો હોય છે. તો તમે સેકન્ડ હેન્ડ પણ એમાં ઉમેરી શકો છો. અને આવી સરસ મજાની ઘડિયાળ બનાવીને તમે તમારી રીતે આ રમત રમી શકો છો, બરાબર? તમને બહુ જ મજા આવશે. તો તમને આ રમતમાં કેવી મજા આવી, તમને આ એક્ટિવિટી કેવી લાગી, તે અમને પણ કહેજો. અને હા, આ ઘડિયાળ જ્યારે તમે જુઓ છો, જ્યારે એના કાંટા બદલાય છે, ત્યારે તમારા મનમાં કંઈ સવાલ થાય છે? મને તો બહુ સવાલ થાય છે. કેવા કેવા સવાલો થાય છે? મને કેવું થાય ખબર છે? મને એમ થાય કે કેમ સૂર્ય સવારે જ ઉગે છે, જ્યારે સૂર્ય ઉગે ત્યારે કેમ અજવાળું થાય છે? જો સાંજે 6 વાગે છે, તો સાંજે 6 વાગે કેમ રોજ અંધારું થઈ જાય છે? અંધારું થાય તો પક્ષીઓ કેવા એમના માળા તરફ પાછા ફરે છે? તો તમને આવું થાય છે? રાત્રે 12 વાગે છે, તો રાત્રે 12 વાગે તો દિવસ બદલાઈ જાય, દિવસે 12 વાગે તો બપોર થઈ જાય. આવું કેમ છે? આવા બધા સવાલો તમને થાય છે ખરા? જો થતા હોય તો તમે વિચારજો અને એના જવાબ મેળવવા પણ પ્રયત્ન કરજો. અને હા, થોડું વધારે વિચારવું પડશે કે આવું કેમ થાય છે, તો જ તમને જવાબ મળશે, બરાબર ને? હવે આવતા એપિસોડમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. नमस्ते बाल दोस्तों, हिंदी कक्षा 6 में आप अभी पुनरावर्तन के जरिए भाषा सज्जता की कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमने
संयुक्ताक्षर और संयुक्त वर्णों के बारे में जाना था। उससे पहले हमने शब्दकोश के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली और उनसे जुड़े हुए अभ्यास आपने खुद भी किए होंगे और उसकी समझ आपकी बन भी गई होगी। आज हम इसी प्रकार से भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो कई सारे शब्दों का वचन परिवर्तन आप करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए अभ्यास भी आपने किए हैं, है ना। और आज हम यहाँ पर ऐसा ही एक अभ्यास देखने वाले हैं कि भाई जब शब्द का वचन परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक वचन में से बहुवचन या बहुवचन में से एक वचन में परिवर्तित करते हैं, तब तक तो बात सही है। लेकिन जब उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो क्या, जब वाक्य लिखते हैं तो उसमें बदलाव या फेरबदल होता है, और अगर होता है तो वह बदलाव किस प्रकार का होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है और उसकी सही समझ भी हमें होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर वचन परिवर्तन के जरिए, यानी कि शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने वाले हैं, और जब वाक्य लिखते हैं तब किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये यहाँ से हम आज समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए ज़रा, आपके लिए सूचना यह है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वैसे तो मैंने आगे भी बताया, आपने कई सारे अभ्यास ऐसे किए हैं। यहाँ पर मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूँ, देखिए ज़रा। पंखा, और इस शब्द का वचन परिवर्तन क्या होगा, क्योंकि आप इस शब्द से परिचित हैं। बहुवचन होता है पंखे, है ना। जब एक होता है तो पंखा, दो या दो से ज़्यादा है तो हम इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं पंखे, यानी कि पंखा एक वचन है, पंखे बहुवचन है। अब इन दोनों शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पंखा से जुड़ा हुआ वाक्य आपको बोलना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है, और मैंने यहाँ पर एक वाक्य आपके लिए बनाया है। आप उस प्रकार का वाक्य भी लिख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, मेरे घर एक पंखा है। मेरे घर एक पंखा है। तो आप यही वाक्य भी लिख सकते हैं और ऐसे अन्य वाक्य भी आप बनाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब पंखे से जुड़ा हुआ एक वाक्य बनाना है, तो आपको सोचना है कि भाई यह वाक्य किस प्रकार का होगा। हाँ, आपने बना भी दिया। देखिए यहाँ पर मैंने जो वाक्य आपके लिए रखा है वह इस प्रकार का है। मेरे घर में 3 पंखे हैं। मेरे घर में 3 पंखे हैं। क्या आपको इन वाक्यों में कोई बदलाव दिखाई देता है? और अगर दिखाई देता है तो वह कौन सा है? हाँ, तो आपका उत्तर शायद यही होगा कि भाई पंखा का हमने क्या किया, पंखे किया। तो आप बिल्कुल सही है कि पहले वाक्य में पंखा एक वचन था और दूसरे वाक्य में पंखे बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि देखिए कि पंखा के साथ जुड़ा हुआ है, और जब हम है बोलते हैं तो उसमें कोई बदलाव आता है? देखिए, उसकी लिखावट में भी आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा होगा, और जब उसका उच्चारण यानी कि वाक्य पढ़ते हैं तब किस प्रकार से पढ़ा जाता है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूँ। मेरे घर एक पंखा है। अब दूसरा वाक्य, मेरे घर में 3 पंखे हैं। तो यहाँ पर आप ये स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि जब पंखा है और पंखे हैं, यानी कि एक वचन में जब है का उच्चारण करते हैं और बहुवचन के लिए जब है का उच्चारण करते हैं तब उसका उच्चारण बदल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप वाक्य पढ़ते हैं तब भी और जब लिखते हैं तब भी। यानी कि बहुवचन वाक्य में है के साथ क्या जुड़ता है, अनुस्वार जुड़ता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आइए दूसरा शब्द भी देखते हैं, आँख, और इसका बहुवचन क्या होगा, आँखें। अब इस शब्दों से जुड़े हुए वाक्य अगर हमें बनाने हैं तो वाक्य किस प्रकार से होंगे? आँखें तो हम सब की है ना। तो उससे जुड़ा हुआ वाक्य ज़रा सोचिए। मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य दिखाता हूँ। मेरी एक आँख में दर्द हो रहा है। समझिए।
और अब बहुवचन वाला यानी कि आंखें वाला जो वाक्य है वह इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रखा है, सच जानकर मेरी आंखें खुल गईं। तो यहाँ पर भी आप दोनों वाक्य का जो फर्क है वह देख रहे, समझ रहे हैं। आंख और उसका बहुवचन हो गया आंखें, और है और यहाँ पर गई, तो दोनों शब्दों का जब उच्चारण करते हैं, जब दोनों वाक्यों का उच्चारण करते हैं, तब भी हमें इस बात को ध्यान में रखना है। आइए तीसरा शब्द देखते हैं, किताब, और उसका बहुवचन क्या होगा अब? हाँ, किताबें। लेकिन किताबें ये आपको ध्यान में रखना है, किताबें नहीं। क्या बोलना है? किताबें। यहाँ पर भी अनुस्वार है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे जुड़ा हुआ यह वाक्य आप पढ़िए जरा। हाँ, किस प्रकार से इस वाक्य को पढ़ेंगे? हाँ, यह किताब किसकी है? देखिए यहाँ पर भी एक और बात भी हम समझ रहे हैं और हमें ध्यान में भी रखनी है कि प्रश्न वाक्य है, इसलिए जब इसको पढ़ते हैं तब हमें इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना। और जब किताब का बहुवचन करते हैं तो किताबें, और किताबें से जुड़ा हुआ ये वाक्य भी देखिए, ये किताबें किसकी है? देखिए यहाँ पर जो बदलाव हुए वाक्य में, कितने बदलाव हुए? हाँ, कुल मिलाकर 6 बदलाव हुए। और ये 6 बदलाव कौन से थे? तो यह का क्या हो गया? ये हो गया। किताब का क्या हुआ? किताबें हो गया। और है का क्या हुआ? है हुआ, है ना। तो ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सिर्फ और सिर्फ शब्दों का वचन परिवर्तन करके यहाँ पर भाषा का काम पूर्ण नहीं होता, लेकिन हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जब हम उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब पूरा जो वाक्य होता है उसमें भी किस प्रकार के बदलाव आते हैं, ये भी हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम अच्छी तरीके से या सही रूप में भाषा का प्रत्यायन कर सकते हैं। तो ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है पौधा। और आप तो कई सारे पौधे बोते होंगे, है ना। और उसका बहुवचन क्या होगा? हाँ, पौधे। एक पौधा और कई सारे पौधे। और उससे जुड़ा हुआ वाक्य आप कह सकते हैं कि यह पौधा मेरा है ना। तो इस प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं, सोचने हैं और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं। यहाँ पर मैंने जो वाक्य लिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना है। यह पौधा मेरा है, यह पौधा मेरा है। अब पौधे से जुड़ा हुआ वाक्य, मेरे घर बहुत पौधे हैं। समझिए, यह पौधा मेरा है और मेरे घर बहुत पौधे हैं। तो यहाँ पर भी पौधा का बहुवचन तो हमने क्या किया? पौधे। लेकिन साथ ही साथ अब तो आप ये बात समझ चुके हैं कि भाई है और हैं, तो इसमें भी किस प्रकार का बदलाव होता है और हमें किस प्रकार से वाक्य लिखने चाहिए। अगला जो शब्द है लड़का, और इसका बहुवचन तो आपको पता है। हाँ, लड़के, लड़का, लड़के। और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो लड़का खेल रहा है। लेकिन लड़के के लिए अगर कहेंगे यानी कि एक से ज़्यादा लड़के हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वाक्य में किस प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अगला शब्द देखते हैं, बात। तो उसका बहुवचन क्या होगा? बातें। और जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने उसकी बात सुनी है, मैंने उसकी बात सुनी है। और उनकी बातें सुनकर हंसी आती है, उनकी बातें सुनकर हंसी आती है। तो इस प्रकार से भी आप वाक्यों का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने शब्द का वचन परिवर्तन करना तो आप जानते ही थे, लेकिन जब वचन परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं
तब हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। और मैं मानता हूँ कि इन उदाहरणों के जरिए जब भी अब आप एक वचन में से बहुवचन में शब्दों को परिवर्तित करेंगे और उनसे जुड़े हुए वाक्य लिखेंगे, तब जरूर आप ये सावधानियां बरतेंगे कि हमें कहाँ पर है लिखना है, कहाँ पर हैं लिखना है और किस प्रकार से वाक्य हमें पूर्ण करना है। तो ये आप अब समझ चुके हैं। आइए इसी प्रकार के कुछ और शब्द भी देख लेते हैं। अब आपको सीधे ही इन शब्दों का वचन परिवर्तन करना है, लेकिन वाक्य आपको लिखना है। मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आप अपनी कॉपी में भी इन शब्दों को लिखते जाइए। ताला, तो इसका वचन परिवर्तन होगा ताले। लड़का तो हमने देख लिया लड़के। किताब तो किताबें। बात तो बातें। लेकिन यहाँ पर अब समझिए, कन्या तो हाँ कन्याएं, है ना। भाषा तो भाषाएं। तिथि तो तिथियाँ। लिपि तो लिपियाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार के और भी कई सारे उदाहरण आपको अपनी किताब में ज़रूर मिलेंगे, तो उसका आपको ज़रूर अभ्यास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का वचन परिवर्तन करके उनसे जुड़े हुए जितने हो सके उतने वाक्य आपको ज़रूर लिखने हैं। और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप अच्छी तरह से हिंदी में अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि आपका जो अभिव्यक्ति का कौशल है वह और भी मुखरित हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा अभ्यास करने आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे और हिंदी का जो आपका ज्ञान है उसको आप ज़रूर बढ़ावा देंगे। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।